بسم اللہ الرحمن الرحیم. Welcome to Star 24 News Pakistan. السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا اس ٹیکنالوجی زندگی پروگرام کی شخصیت کے ساتھ ناظرین ہماری کوشش ہوتی ہے پروگرام اور سپر اسٹار شخصیت سے بنائیں جس کا اپنا ذاتی بیک گراؤنڈ بھی ہو اور یوسی کے حوالے سے ایک عام کردار بھی. تو ماشاء اللہ آج جس بیگننگ پرسنالٹی سے آپ کو گفتگو کرا رہے ہیں وہ ایور گرین پرسنالٹی کی بات ہے. بہترین شخصیات، اچھے سوشل ورکر اور پی یو سی کے چیئرمین سرور مصطفیٰ صاحب آج ہمارے پروگرام میں مانے چلے گئے اس پرسنالٹی طرف اور کر رہے گفتگو آپ سے. سر السلام علیکم. سر فرسٹ آف آل آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. اچھا سر، بات ہوگی آج کی شخصیت پر. اگر میں آپ کی شخصیت پر بات کروں گا تو بہت سارے پہلو ہیں. سوشل ایکٹیویٹی آ جاتی ہے، زمینداری آ جاتی ہے اور سیاست میں آ جاتی ہے. تو سر جو لوگ آپ کو جانتے ہیں اور جو جاننا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جس نوٹیبل شخصیت سے جائیں اس کے خیالات، اس کے اظہار، جو کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگوں تک ہم پہنچاتے ہیں. تو آپ اپنا کائنڈلی پروفائل ہمارے ناظرین کو گائیڈ کر دیں. فیملی پروفائل بائی کاسٹ مخدوم ہے اور ہمارا جو تعلق ہے وہ تقریباً زران سے رہا ہے، لیکن میرے جو فادر ہیں وہ سول سرونٹ رہ چکے ہیں. جی سول سرونٹ میں انہوں نے پاکستان کی اور سندھ کی خدمات انجام دی. اچھا سر، سیاست میں آنا آپ کا خواب یا اپنے خاندان کی روایت کو بڑھاتے ہوئے آپ نے قدم اٹھایا؟ کیونکہ سر خواب ہر کسی کے اپنے ہوتے ہیں. تو سیاست میں آنا ایکسیڈنٹلی یا بس اپنے خاندان کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے یا اپنے یو سی کے عوام کے خاطر آپ نے سیاست جوائن کی؟ یو سی کے عوام کی خاطر سیاست جوائن کی، اچھے کے لیے کی تاکہ لوگوں کے لیے کچھ کر سکیں. اور ایجوکیشن تھوڑی ہم نے حاصل کی ہے. اس حوالے سے ہمارا یہ تھا کہ لوگوں کے مسائل کو سمجھ سکیں، جو ماڈرنائزیشن ہے اس کی طرف لے جائیں، اس کو جو ایشوز ہیں اس حساب سے سولو کیا جائے. اچھا سر، آپ پرسنلی آج کی سیاست کو شیلٹر کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں یا غریب عوام کی خدمت؟ نہیں، اوور آل میں کہہ رہا ہوں کہ جو آج کی سیاست ہے آپ کی نظر میں کیا شیلٹر ہے یا عوام کی خدمت کے لیے کی جا رہی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کی خدمت ہمارے پاکستان میں سیاست میں ہو رہی ہے؟ دیکھیں، اس کو میں یہ جواب دوں گا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. صحیح جگہ تو اونچ نیچ آپ کو ملے گی، صحیح جگہ ملے گی. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہر کوئی شیلٹر لینے کے جا رہا ہے تو یہ بات غلط ہوگی. جو میں اپنے علاقے کی بات کروں گا، ہمارے جو MP صاحب ہیں ریسپیکٹ اسماعیل راؤ صاحب، جی بالکل، انہوں نے جو ہمارے یہاں جو کام وغیرہ کیے ہیں وہ بہت ہی فائدے مند ہے عوام کے لیے. اور انہوں نے وہ ٹائم دیا ہے ایز اے پراپر چینل کی طرف سے ٹائم دیا ہے خدمات انجام میں. اچھا سر، میں آج بات کروں گا کہ مجھے موقع ملا ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ میری کوشچن کا آنسر جو ہے آپ ہی سے ملے گا. سر سیاست میں چاہے چھوٹی لیول کی سیاست ہو، بڑی لیول کی سیاست ہو، چیئرمین ہو، ڈسٹرکٹ کونسل ممبر ہو، میئر ہو، MLA ہو، MP ہو، یہ بھی آپ دل سے بتائیں کیا جن لوگوں کو جس چیز کے لیے چیئر دی جاتی ہے، پاور دیے جاتے ہیں، کیا اس حساب سے ہمارے پاکستان کی اکنامی کے حوالے سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں، ہماری فی الحال جو اکانومی ہے وہ بہتری کی طرف تو آئی نہیں. جیسے حکومت انہوں نے اسٹیپ لیا ہے، جیسے اس طرف سے جو پاکستان کا جو اکانومی تھی وہ دن بدن ڈاؤن فال کی طرف جا رہی تھی. صحیح. اب انہوں نے کیا ہے، اب دیکھیں ایک چیز جو بالکل زیرو پہ ہے اس کو ٹائم تو لگتا ہے. ایک ہوتی ہے ایوریج، اس میں ٹائم کم لگتا ہے. ایک جو سیٹسفیکٹری ہوتی ہے اس میں ٹائم لگتا ہے. اچھا سر، یہ کوشچن تھوڑا ہمیں زیادہ سننے میں نہیں آ رہا ہے کہ ٹائم لگے گا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھٹو صاحب کی حکومت سے لے کر، بھٹو صاحب نے بھی تو حکومت کی تھی،
मोहतरमा ने भी तो हुकूमत की थी ना। आप भुट्टो साहब के हुकूमत के अगर बात करेंगे तो बिल्कुल बहुत फ़ख्र होकर कहेंगे कि भुट्टो साहब ने मुल्क के लिए ये किया वो किया, और मोहतरमा ने उस चीज़ को संभाला, और मोहतरमा ने अपनी जान इस आवाम के खातिर निसार कर दी। तो वो सियासत हमें क्यों नज़र नहीं आ रही? हमारे यहाँ जो सियासत हुई है, जो पीपल्स पार्टी को जो टेन्योर्स मिले हैं, उसमें आज तक पाकिस्तान में एक भी भी ऐसा नहीं रहा जो मुकम्मल हुआ। सही। हमें पार्टी को भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। देखिए 5 साल का पीरियड मिलता है, उसमें एक आप कंट्री को शेप कर रहे हैं, एक गाँव या एक सूबा या एक डिस्ट्रिक्ट नहीं है उसको आप शेप कर रहे हैं, कंट्री उसका पूरा सिस्टम है। तो उसमें उसको लगता है सिस्टम तो शायद इतना टाइम भी नहीं मिला। तो सर आपकी नज़र में कहीं ऐसा नहीं है कि मेरे ख्याल में क्या बजट कम है या पावर्स नहीं है, इस हिसाब से भी खिदमत? एज अ चेयरमैन पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, चेयरमैन की बात नहीं कर रहा हूँ। पावर एक होता है पावर, एक होती है बजट। ये दोनों चीज़ों से मुल्क की इकनॉमी बेहतर होती है। या हम अगर कहें कि बेसिक डेमोक्रेसी वाली जो भी चीज़ें पावर और बजट से होती है, तो क्या आपकी नज़र में अब बजट बेहतर? बजट बेहतर। देखिए आप 2 साल पहले गंदम चले जाएँ, 2 साल 3 साल पहले गंदम की हालत चेक करें, रोटी के रेट चेक करें, हालत चेक करें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। फसल पे आप आ जाएँ, ज़मींदार को आज भी थोड़ा है, स्पेशली चावल को इस साल थोड़ा वो चीज़ नहीं मिल पाई जो मिलनी चाहिए थी। या फिर शुगर मिल्स की तरफ जाएँ, वो ज़मींदारों को मिल रहा है। अच्छा सर, आपकी नज़र में क्या इंक्रोचमेंट पर काम हो रहा है? ओवरऑल बात कर रहा हूँ। बिल्कुल हो रहा है, हुआ है। हैदराबाद में आप मेरे पास आए होंगे, आपने यहाँ से देखा होगा बहुत सारी जगहों पे कि जितने भी जो प्रोजेक्ट्स हैं जो अपनी लिमिट क्रॉस किए हैं, तो उन लोगों को उन लोगों ने कंट्रोल में लाया है। अच्छा, आई को आम क्वेश्चन करने जा रहा हूँ सर आपने, क्योंकि मुझे यकीन है कि बेहतर मुझे आंसर मिलेगा। सर चेयरमैन हो, ज़मींदार हो या ब्यूरोक्रेट हो या सियासत हो, पावर रखते हैं। तो एक ज़मींदार भी अपने हिसाब से पावर रखता है, चेयरमैन के हिसाब से पार्टी के हवाले से चेयरमैन भी पावर रखता है, MNP का भी पावर है। सर इतने पावर होने के बावजूद भी हमारे मुल्क में मंशियात ख़त्म क्यों नहीं हो रही? मंशियात को सर हम 2 पहलुओं से देखें। एक ये है कि जो इलीगल चैनल्स हैं, लीगल चैनल्स के थ्रू चीज़ें आ रही हैं। एक होता है लीगल चैनल होता है, जैसे आपने फ़ोन लिया हुआ है, सूट आपने लिया हुआ है, या आपका कैमरा है, या आपने लीगल आप शॉप पे गए, आपने पेमेंट की है, उस बंदे ने टैक्स पे किया, आपको चीज़ मिली, सही, ठीक है। और एक होता है लीगल चैनल। जी जी, ये सारी जो मंशियात आती है वो सारी लीगल चैनल से आती है। सही। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएँ, जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, USA हो गया, UK हो गया, आप वहाँ पे देखें कि मंशियात है कि नहीं। अब आती है सर्विस की बारी। सर्विस पे जो है हमारे फोर्सेस हैं, फोर्सेस का आपने देखा होगा अभी भी गुलाटी में लोगों ने, DSP साहब ने बहुत बड़ा एक जो है जो एक इनका मटीरियल होता है वो कवर किया था। फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, और जो ऊपर से है सरकार भी उसको उतना कंट्रोल कर रही है। बाकी जो लीगल चैनल है उस पर सरकार जितना कर सकती है उतना कर रही है। सही। अब वो आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हो रही है। साहब आप समझते हैं कि इस मंशात का रिएक्शन आगे चलकर हमारे नौजवानों को पड़ेगा, और अगर नौजवानों पर पड़ेगा तो हमारे मुल्क का पर असर होगा। तो इसको कंट्रोल किया जाए कि नहीं किया जाए? कंट्रोल किया जाए और किया जा रहा है। मैं इस पे बिल्कुल एग्री हूँ कि हमारी फोर्सेस भी इस पे बिल्कुल है। फोर्सेस की बहुत बड़ी इसमें खिदमत अंजाम है। सही। यूसी चेयरमैन के हवाले से आप पावर से कितना मुतमईन हैं? देखें मैं आपको थोड़ा अपने तरीके से बताता हूँ। आप अगर जाएंगे SHO की पोस्ट के लिए तो आप उसमें SP के पावर्स नहीं रिक्वायर करेंगे कि मुझे पूरी डिस्ट्रिक्ट पावर चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हमारा जो है एज ए चेयरमैन मुझे हमने जब मैं फॉर्म भरा था तो मुझे यही पता था कि मुझे गाँव की खिदमत करनी है, मुझे SHO साहब को डिस्टर्ब नहीं करना, DSP साहब को डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है, तो वो एक अलग हो गई। हाँ, उनसे हम खिदमत लेते हैं उनको, उनसे हम टच में रहते हैं कि हमारे पास जो भी फर्स्ट टाइम नॉलेज होती है उनसे हम शेयर करते हैं, जो भी प्रॉपर चैनल्स के जरिए उनको नॉलेज चाहिए वो उनको फराहम करते हैं। बाकी जो चेयरमैन को जो है जो सीट है वो आपकी देखा ना, वो
खिदमत के लिए दी गई आपको। अच्छा, आप अपने इलाके को देखें, वहाँ पे क्या है क्या नहीं है, उन चीज़ों को चेक एंड बैलेंस में रखें। सियासत में सर आप किसको फॉलो करते हैं, बिलाल साहब या सिविल ज़फर साहब? बिलाल साहब यंग है थोड़ा। अच्छा, आप समझते हैं कि बिलावल साहब ने जो मोहतरमा ने आवाम के लिए एक लक्ष्य बनाया था, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है मेरी बात गौर से समझिएगा, जो मोहतरमा ने जिसके लिए मोहतरमा ने अपनी जान भी दे दी, पार्टी को बेहतर हद तक और किया, तो समझते हैं कि बिलाल साहब ने उस चीज़ को जो मोहतरमा का विजन था, पार्टी हो या लक्ष्य, तो बेहतर संभाला। बिल्कुल बिलाल साहब ने जब से बिलाल साहब आए हैं उनके आप देख लें, जो भी उनको इंटरव्यूज उनके सुने, वहाँ देख लें, बिल्कुल कंट्रोल किया उसको। जैसे बेनज़ीर साहिबा का जो एक विजन था एक प्रॉपर पाकिस्तान के लिए, सिंध के लिए था, उसको बिलावल साहब ने बिल्कुल किया सर। उसमें वो पूरे उतरे हैं। हमारी मैशत ज़ीरो लेवल पर आ चुकी है, आप इसका जिम्मेवार किसको ठहराते हैं? इनस्टेबिलिटी इसका एक ही आंसर है, इनस्टेबिलिटी। एक स्टेबल सिस्टम होता है, देखें जो एक सरकार आती है वो अपना टेन्योर पूरा करके जाती है, सही, आप उनको क्वेश्चन करें कि आपको हमने डे 1 से डे 5 तक हमने लिखा है, आपने क्या किया है क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया, आप उनसे क्वेश्चन करें। राइट है आवाम का, मैं आज बैठा हूँ यहाँ पे, मेरे जो 5 साल पूरे होंगे, आवाम का राइट है मुझसे पूछें, ठीक है क्या किया है क्या नहीं किया। अब पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत ने टेन्योर पूरा नहीं किया, सही। अब आते हैं तो जो है अपना जो पॉलिसीज़ हैं वो पॉलिसीज़ एक नहीं रही, पॉलिसीज़ मल्टीपल पे आती रहती हैं, तो उसमें जो है वो पाकिस्तान को बहुत नुकसान देखना पड़ रहा है, सही, इकोनॉमी वे में। तो उस हिसाब से इकोनॉमी को बहुत अच्छा लगा है। डेवलपमेंट के हवाले से आप क्या कर रहे हैं? डेवलपमेंट का मामूल में आप समझते हैं कि जो हमारा नुकसान हुआ था फ्लड के दौरान या कोरोना के दौरान, जितनी बार मुल्कों से फंड्स इकट्ठे किए गए, उसके हवाले से हमारी डेवलपमेंट बेहतर हुई है? डेवलपमेंट बेहतर हुई है। देखें आपने शायद विजिट किया हुआ है नहीं, कोरोना का जो टाइम था, फ्लड का टाइम था, उसमें आवाम को किस कंडीशन में आने की, पुलिस पार्टी उनको डिफरेंट पैकेजेस दे रही है, डिफरेंट बेनज़ीर कार्ड हो गया, और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ज़रिए पीपल्स पार्टी जो है उनकी खिदमत कर रही है। थैंक यू सर, आपसे बात करते हुए बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन टाइम का इशारा भी मिल रहा है कि टाइम थोड़ा सा रह गया है, तो मैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। सर, बंदा अमीर हो चाहे गरीब हो, ऐसी हर किसी शख्स की ख्वाहिश होती है कि मैं दुनिया में ऐसा काम करके जाऊँ ताकि मेरे जाने के बाद लोग ये कहें कि वाह यार, ये बंदा था जिसने हमारे शहर के लिए, इलाके के लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ की। तो ऐसी कोई ख्वाहिशात? ऐसी ख्वाहिशात हैं, बिल्कुल हैं। बिल्कुल। जैसे एक तो यह है कि मेरा विजन है कि दो चीज़ें मैं करके जाऊँ। एक तो उसमें हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, वो भी इस तरह का कि लोगों को वाकई ही जो है उनको हेल्थ प्रोवाइड हो, सर्विसेज प्रोवाइड हो, बिल्कुल सही, ठीक है। और दूसरा हो गया फ्रेश वाटर। उसमें हमने यूरोपियन यूनियन में काम भी बहुत किया है, बड़ी आपने अच्छी बात की, फ्रेश वाटर आवाम जो है हर घर तक पहुँचना चाहिए जी, हर बंदे को फ्रेश वाटर की हुई होनी चाहिए, हर इंसान का बेसिक राइट है, फ्रेश वाटर हर इंसान का बेसिक राइट है और उनको मिलना चाहिए। सही। और हम देखते हैं कि जहाँ पे भी कुछ बैरियर्स हैं उनको तोड़ के हम वहाँ पे उनकी खिदमत के लिए पहुँचे। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करने जा रहा हूँ सर, आप ज़मींदार हैं, अब समझते हैं कि जो इशू कंटिन्यू चल रहा है केनास का, और जिसका इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पर है, खासकर इल्ज़ाम बिल्कुल लग चुका है, तो आपकी नज़र में ये केनाल बनने चाहिए या जो इल्ज़ाम लगा है उस हवाले से आप? पीपल्स पार्टी का ऑलरेडी बयान आ चुके हैं, आपने भी ऑब्वियसली देखे होंगे। पीपल्स पार्टी इसके नहीं है अपने राइट में, और जो इसका इम्पैक्ट होगा वो सिंध को होगा, इसमें टोटल सिंध को होगा इम्पैक्ट होगा। अगर केनास नहीं बनने चाहिए, केनास नहीं बनने चाहिए। थैंक यू सर, आपने बता दिया। नाज़रीन क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम शॉर्ट होता है, हम आपके इज़हार मोहब्बत के खातिर हर उस जगह जाते हैं, चाहे सिंध हो, बलूचिस्तान हो, जो भी नोटेबल शख्सियत होती है जिससे सुनने के लिए आप सब्र होते हैं। तो आज की नोटेबल शख्सियत एक ऐसी प्यारी शख्सियत, यंगस्टर, एक बेहतरीन शख्स
سوشل ایکٹیویٹی میں ایک اچھا کردار اور خاندانی حوالے سے ایک بڑا پروفائل جو ہم نے آپ جس کے لیے بے چین تھے. تو سارے سوالات ہم نے آپ کی طرف سماعت کر دیے ہیں. لاسٹ میں مجھے اور آج کے بسمانی کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.